Hello students, welcome to you in this video. Param Guru Pathsala English Medium School Sarsa. My name is Master Kamini. Today I am taking the video for class 1. My subject name is EVS. Unit number 6, that is good habits. Today I cover topic that hard words of this chapter introduced with activity and lesson explanation. So dear students, you have to pay attention in this video and listen to me carefully. So if you have textbook, then open your textbook, EVS textbook, page number 166 and if you have textbook, then pay attention textbooks, otherwise listen my videos carefully. So let's start. First of all, chapters hard words, that is good habits. Here I have to draw on some pictures also, so you can clearly understood what can I say you in this video. See that hard words of this chapter, some words are familiar with your daily routine lives, so that can words we have to explain in while I am going to explain the lesson. Bad smell, bad या खराब smell, you know the very well smell, dirt, stains, dirt उसमें से बदबू आती है वो, dust, stay healthy हम अच्छे रहना चाहते हैं वो, and soap means साबु, not your दुकान shop, same way, toilet, you know the toilet word very well, sneezing means आपको सर्दी होती है वो, कफिंग कफ होता है, सर्दी कफ छींक आती है, सेम वे, मेल्स मीन्स खाना, एडल्ट आपसे बड़े होते हैं उसको एडल्ट बोलते हैं, क्लिप मीन्स कट करना, नेल क्लिपर, सेम वे नेल क्लिपर नाखून काटने वाला मशीन नेल क्लिपर, क्रीम जो हम फेस पे लगाते हैं वो, टच आप टच करते हो एक दूसरे को वो, सिमिलियर. सम वर्ड्स आर वेरी फैमिलियर एंड वेरी नॉन वर्ड्स हियर गिवन इन दिस चैप्टर्स. रब मीन्स घसना, कॉम्ब मीन्स आप जो हेयर कॉम्ब करते हो ना वो, मैचस्टिक्स, कॉटन बर्ड्स, हैंकरचीप्स, रिंस मीन्स गुजराती में बोलते हैं कोगड़ा करना, हिंदी में बोलते हैं कुल्ला करना, खाने के बाद रिंजिंग योर माउथ ऐसे बोलते हैं ना, सेम वे. पार्टिसल्स मीन्स छोटे छोटे जो खाना खाने के बाद फोतरे या कुछ रह जाता है दो दांतों के दो टीथ के बीच, उसको पार्टिसल्स बोलते हैं. So dear students, this is your hard words of these chapters. Hard words means familiar words or new words for you. So you have to write down these hard words in your notebook 3 times. Each spelling write down 3 times. Like that, BAD, 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 bad. SMELL, smell. You have to once again write down 2-3 times. So you have all the spellings write down 3 times in your EVS notebook. So now we have to start our textbook lesson. See, chapter 6, good habits. One activity is given there. Here Mr. Monty, that is your monkey in your book, so you can see your book very well, is very clean. वो बहुत अच्छा और clean है. He never smells bad. वो कभी गंदी smell नहीं करता. Here are some things we found in Mr. Monty's bag. आप लोगों ने कुछ थिंग्स उसके बैग में ढूंढी है. सो टिक द वंस दैट हेल्प हिम टू बी क्लीन. ऐसी कौन सी चीज़ है उसको क्लीन रखती है, तो आपको वो टिक करना है. फर्स्ट क्या है, सॉप. वो नहाता है तो सॉप तो चाहिए ना, तो टिक द राइट. बैट, क्लीन रहने के लिए बैट ज़रूरी है? नो, वो तो खेलने के लिए होता है. देन यू हैव टू पुट क्रॉस. कॉम, हेयर अच्छी तरह से बाल बनाने हो, हेयर कंप्लीट करने हो तो कॉम तो ज़रूर पड़ेगा. ये बॉल की क्या ज़रूरत है, तो बॉल बैट तो खेलने की चीज़ है, वो कोई क्लीन रखने की चीज़ है. देन रॉन्ग, शूज़ ऑल्सो रॉन्ग. क्यों, शूज़ पैर तो अच्छे रखते ही है, लेकिन वो उसने क्या बोला है, अभी आपको क्लीन रहने के लिए नीट एंड क्लीन रहना है तो उसमें ये शूज़ नहीं आएगा. क्यों, वो कभी बाहर जाएगा तब शूज़ आएगा. अभी तो वो क्या है, क्लीन रहने के लिए उसने क्या क्या चीज़ यूज़ की है वो आता है. देखो, सो टुवाल, यस टुवाल तो चाहिए नहाने के बाद, और हैंकरचीप भी चाहिए. पीलो वो हैंकरचीप उसके हाथ में है, देखो ये स्काई ब्लू कलर का, तो राइट.
टूवल, नहाने के लिए टूवल चाहिए, टूथब्रश वो भी चाहिए. सो all these things rights and ball bat and shoes are wrong for that. Now we have to discuss about chapters lessons. So you have to pay attention here. Next slides. Here once I read the lessons and then explain the lessons. Explain the lessons. When a person or a thing has no bad smell, dirt, stains and dust, द पर्सन और थिंग इज़ क्लीन. देखो ये कोई पर्सन या कोई चीज़ हो, उसमें से बदबू नहीं आ रही हो, क्लीन लग रहा हो, डर्टी ना हो, गंदगी ना हो, तो वो पर्सन्स और थिंग्स हमको क्लीन बोलते हैं. वैन एवरीथिंग इज कैप्ट इन इट्स करेक्ट प्लेस, एग्जाम्पल इन अ रूम, द रूम इज क्लीन. वैन एवरीथिंग इज केप्ट इन दिस करेक्ट प्लेस, एग्जाम्पल इन अ रूम, द रूम इज क्लीन. आपके रूम में कंप्लीट जगह पे हर एक चीज़ रखी होती है, एकदम फाइन करेक्ट वो प्लेस पे रखी होती है, तो वो रूम कैसा लगता है? क्लीन लगता है. लेकिन इधर उधर स्कैटरिंग रखा होता है, कहीं भी कुछ भी रख दिया होता है, फ्लोर पे कुछ गिरा होता है, तो ये रूम ये वो चीज़ क्लीन नहीं बोला जाती. ओके, नाउ वी हैव टू कंटिन्यू अवर लेसन. वाई वी शुड बी क्लीन, हमको क्लीन क्यों रहना है? कीपिंग क्लीन हेल्प अस स्टे हेल्दी. हम क्लीन रहेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. इट मेक्स द प्लेस वेयर वी लिव, स्टडी, प्ले एंड वर्क हेल्दी प्लेस. हम जहाँ पढ़ाई करते हैं, जहाँ बैठते रहते हैं, खेलते हैं, वो भी प्लेस हेल्दी होनी चाहिए. नेक्स्ट, हाउ टू स्टे क्लीन. हाउ टू स्टे क्लीन, हम क्लीन कैसे रहेंगे? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल योर हैंड्स. वॉश योर हैंड्स विथ सॉप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. टॉयलेट यूज़ करने के बाद आप सॉप से हैंड वॉश करिए. स्नीजिंग और कफिंग ऑल्सो. स्नीजिंग मीन्स छींक खाते हो या कफ आता है, कुछ भी होता है, तो आप टॉयलेट से सॉप से हैंड वॉश करो. ऑल्सो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स. खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद ऑलवेज वॉश योर हैंड्स. आस्क एन एडल्ट to clip your nails with a nail clipper regularly. Every Sunday you have to cut your nails with the help of adult. क्यों? आप खुद नहीं काटोगे, छोटे बच्चे खुद नाखून नहीं काटते हैं. वो एडल्ट मीन्स अपने मम्मी पापा को बोलो या बिग ब्रदर सिस्टर होती है उनको बोलो. डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर नेल्स. नेल्स को क्लीन करना मत भूलो. हियर 3 pictures are given very beautifully in this book. So if you have book, then read all these pictures below lines. That wash your hands with soap before and after meals to remove germs. Second, wash your hands with soap after playing with pets and also after coming from outside. घर से बाहर से जब तुम आते हो तब भी हैंड वॉश करने हैं, और किसी पैट्स, कुत्ते, बिल्ली, किसी के बच्चे के साथ भी खेले होते हो तब भी आपको हैंड वॉश करने हैं. Clip your nails with the nail clipper regularly with the help of an adult. आपके बड़े होते हैं उससे आपको नेल कटिंग करवाना है, वो भी क्लीन रहने का एक अच्छा तरीका है. नाउ फेस. ऑलवेज वॉश योर फेस विद सोप एंड वाटर एटलीस्ट 3 times a day. दिन में 3 बार साबुन से मुँह धो, फेस वॉश करो और क्लीन वाटर से. डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम ऑन योर फेस. आपके फेस पर किसी भी टाइप की किसी की भी क्रीम अप्लाई मत करो. क्यों? इट्स अ डेंजर एंड हार्मफुल फॉर योर फेस. नाउ द आइज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ. आइज, विदाउट आइज वी कैन हेल्पलेस. Okay dear students, so be careful with your eyes also. Wash your eyes with clean and cold water. Clean and cold water से आप अपनी eyes clean करो. Do not touch or rub your eyes with a dirty hands. आपके hands गंदे हो तो उससे आप eyes को touch नहीं करोगे. If anything gets into your eyes, ask an adult to help you remove it. आपके आइज़ में कुछ चला गया हो तो आपके एडल्ट मीन्स आपके बड़े को बोलो कि वो उसमें से रिमूव करे. आप खुद मत उसको रबिंग करो, मीन्स
घिसे कोई मचोड़ता है ना आइस को, वो कभी नहीं करने का। क्यों, कभी इसमें कुछ चला गया होता तो वो अंदर चला जाता है, इसके ऊपर के डीप पार्ट में चला जाता है, तो यू हैव मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट। सो हाउ टू स्टे क्लीन, वी हैव टू stay clean by hands, face and eyes. That three parts we have to discuss in this video. Now next is that to MCQ and hair, ear, nose and teeth and also feet. See, two MCQs are given in this book also, that keeping clean help us stay healthy. Answer A means keeping clean, हम clean रहेंगे तो हम healthy रहेंगे. Second, after using the toilet, wash your hands with soap, not oil or mud. Answer C. Now, hair. Hair कैसे रखने हैं? Oil your hair regularly. हमारे hair में regularly oil डालना है. Comb your hair very gently twice a day. आपको अपने बाल अच्छी तरह बनाना है, दिन में 2 बार अच्छी तरह से बाल को बनाना है. मीन्स आप माथु जो ओढ़ते हो ना, उसको कॉम योर हेयर कहते हैं. वॉश योर हेयर विद अ गुड शैम्पू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. वीक में 2 बार आपको हेयर वॉश करने हैं, हर रोज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बाल झड़ जाते हैं, उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है और फिर जल्दी वाइट भी हो जाते हैं. सो वॉश योर हेयर विद अ गुड शैम्पू एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक. नाउ ईयर्स. Never put anything like a safety pins, matchsticks in your ears to clean them. कान साफ सफाई करने के लिए आप कभी भी सेफ्टी पिन्स और दिवासड़ी मैस्टिक कभी नहीं डालोगे कान में. When you want to clean your ears, ask an adult to use cotton buds to clean them. कॉटन बड से ही आपको ईयर्स क्लीन करने हैं और खुद नहीं करने हैं. आस्क योर एडल्ट्स. यूज सॉफ्ट क्लोथ टू क्लीन बिहाइंड द ईयर्स. कान की साफ सफाई करने के लिए पीछे वाले पार्ट में आप सॉफ्ट कॉटन क्लोथ्स या कोई अच्छा साफ कपड़ा हो, रुमाल हो, उससे कान साफ सफाई करनी है. किसी भी टाइप का पॉइंटेड चीज़ कान में नहीं डालना है, ईयर्स में कभी भी मत डालना. नोज. यूज़ हैंडकरचीफ टू क्लीन योर नोज. हैंडकरचीफ ही यूज़ करना है नोज क्लीन करने के लिए. When you wash your face, blow your nose to clean it. आप नाक छींकते हो ना, उसको blow your nose बोलते हैं. Do not put anything inside your nose. किसी भी टाइप का, कुछ भी टाइप का आपके नोज में मत डालो. टीथ कैसे साफ सफाई करनी है? Rinse your mouth well after eating. खाना खाने के बाद आप अच्छी तरह उसका कुल्ला करो. These remove the food particles that get stuck between the teeth. वो क्या करते हैं, आपके दोनों दांत के बीच में वो घुस जाते हैं और देर आर कैविटी द प्रोडक्ट, ये वहाँ कैविटी हो जाती है. सो यू हैव टू रिंस योर माउथ आफ्टर ईटिंग और आफ्टर ब्रशिंग ऑल्सो. ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे. दिन में 2 बार आपको ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड बिफोर गो टू बेड, नाइट सोने से पहले. नाउ द फीट. सी, फीट. वॉश योर फीट आफ्टर प्लेइंग. फीट मीन्स पाँव कब धोने हैं? वॉश योर फीट आफ्टर प्लेइंग. खेलने के बाद आपको आपके पाँव अच्छी तरह साफ करने हैं, धोने हैं. कीप द नेल्स ऑफ योर फीट क्लीन बाय वॉशिंग देम. उनको भी आपको क्लीन करना है, उनको भी आपको क्या करना है? क्लीन करना है. आस्क एन एडल्ट टू क्लिप योर नेल्स रेगुलरली विद द नेल क्लिपर. उसको उस पैर के नाखून को भी नेल क्लिपर से काटना है. एडल्ट को बोलना है. एडल्ट मीन्स आपके बड़े मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन जो बिफोर 10th स्टैंडर्ड, सॉरी आफ्टर 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड के बाद जो बड़े होते हैं उसको आपके बड़े भाई बहन बोलते हैं, क्योंकि नाउ यू आर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड 10th स्टैंडर्ड 9th देयर इज़ वास्ट डिफरेंस. सो वो आपके नाखून काट सकते हैं. ओके, खुद कुछ भी नहीं करना है. सो इन दिस लेसन वी हैव टू डिस्कस that good habits and how to be, why should we clean and how to stay clean. We have to clean our hands, face, eyes, hair, ears, nose, teeth and feet. So dear students, this is your lessons. Important things is we have to keeping clean help us to stay healthy, and how to be, we have to stay healthy and stay clean. A conclusion of this lesson that given here: 1.
slide also I have to put that how we have to clean our ears, nose, everything. So it's a very small topic of this lesson is that first of picture that ears use cotton buds and soft cloth. Just a two lines topic or point of this lesson is that hands we have to use soap, nail clipper, handkerchief. स्नीजिंग एंड कफिंग होता है तब आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना है और हैंड वॉश करने के लिए सॉप, नेल्स काटने के लिए नेल क्लिपर और कॉर्नर ऑफ दिस नोज हैंडकरचीफ एंड डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज हियर फेस. सॉप एंड कोल्ड वाटर से ही आपको फेस वॉश करना है. डू नॉट अप्लाई एनी क्रीम का नाम भी मैंने लिखा है कि क्रीम अप्लाई नहीं करनी है. आइज डोंट रब और टच योर आइज. यूज़ क्लीन वाटर ही यूज़ करना है. लास्ट में देखो यहाँ 3 पिक्चर्स भी दिए गए हैं. हेयर कॉम्ब योर हेयर रेगुलरली एंड ऑयल एंड शैम्पू ऑल्सो. टीथ brush your teeth and rinse your mouth completely before eating and after brushing. And feet means पाँव पैर होते हैं वो. nail clipper and wash clean water से. Now dear students, here explanation is over. Today's homework is that you have to write down hard words 3 times in your notebook and 2 MCQ in these chapters. You have to also write down these pictures, last picture slides you have to draw in your notebook and write down the same points that I have to write down in this page. So we have to very well soon with our lessons exercise and definitely made with good question answers and all the exercise of this lesson. So dear students, all the best for next video.